guys, welcome to my channel. I hope you're all doing fine. You're all studying. So guys, today I'm going to discuss a new topic from the class 11, that is redox reactions. Okay, so you all know that we have started this part, this unit, redox reactions. Okay, so redox reactions already we have started. Okay, so redox reactions you have already started. So let's explore some new topics from this chapter, that is what are the types of the redox reactions. So just I am writing here. I think you are all familiar in class 11. Sorry, in class 10 you are all familiar with these types of redox reactions. So first type is your combination reactions. Okay. Then the second one is your uh, decomposition reactions. You have already started in class 10, so it's not new for you guys. So combination reactions, decomposition reactions, then you have to study for displacement. Also you have studied in class 10 displacement reaction, and the last, that is the disproportionation reaction. Okay, so these are the particular reactions you have to study. Again I'm saying you that, again I'm telling you that in class 10 you have studied about these particular types of redox reactions. Again you are going to study these particular types, okay, in a very detailed way. That is the difference only. In class 10 you have just explored the definitions and little bit of examples, but in this particular class 11 you have to study in a detailed manner. Okay, so let's start by the first types, that is a combination reactions. Okay, one by one we'll see the others also. Okay, so पहले हम लोग क्या देखेंगे, combination reactions देखेंगे. So combination reactions, नाम सुन के क्या लगता है कि combine होना, ठीक है, तो नाम सुन के क्या लगता है कि ये combined होगा, बट combination reactions और जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे ये एक ऑपोजिट बोल सकते हैं हम लोग. So decomposition reaction is the reverse of combination reactions. Similarly, combination reactions again will be the reverse of decomposition reactions. That is the difference you can say. But by citing some examples, we'll explore. Okay. So combination reactions. So as per the definitions, if you want to see the definition of combination reactions, the definition is telling us that when two or more reactants combine, and it will give you a single product, that is called combination reactions. When two or more reactants, suppose I am taking A plus B, A is also a reactant, B is also a reactant. So maybe it is similar reactant or it may be unlike, say unlike element. Okay, combination of two elements or two reactants, it will give you one product, suppose P. Okay, so that is the definition, the very basic definition you can say. सो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन देखना है, सो आपको डेफिनेशन लिखना है व्हेन टू, और इससे भी ज़्यादा अगर हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, व्हेन टू और मोर, अगर प्लस सी है, इट विल गिव यू ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट. अगर आपको एक ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है इन द राइट हैंड साइड, देन आप ये बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट बाय एन एग्जांपल विथ पर्टिकुलर डिस्कशंस अबाउट योर एग्जांपल्स. ओके, सो आज हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, हर एक का, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग छूटने नहीं देंगे. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का हम लोग आज एग्जाम्पल देखते हैं और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग को देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ही हम लोग को बोलता है कि आपका चैप्टर रेडॉक्स है. रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस होते रहना एक पर्टिकुलर रिएक्शंस पे. ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर विथ सम एग्जाम्पल. सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, अ वेरी familiar example for all of us, that is carbon when burnt in presence of oxygen, it gives you carbon dioxide. Okay, now you don't have to mention every time the phases. So phases आप लिख सकते हैं यहाँ पे. So carbon होते हैं solid, that is coke carbon, oxygen gas, and carbon dioxide is already a gaseous element, gaseous compound. So you can write in a parenthesis, that is G, small g. So it is not mandatory to show every time
the phases of this particular compound or element. Okay, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप डाउट में हैं तो मत लिखिए, बट लिखना अच्छा है, मैं बार बार बोलता हूँ लिखना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन अगर है तो आप छोड़ दीजिए. Just to take an example, suppose I am taking one example, a very similar or familiar example. We generally study from a lower class. Carbon bonds in oxygen. In presence of oxygen, it gives you carbon dioxide. Now, whether it is a combination reactions or not, yes, obviously, because two reactants combine to give only one product. Only one product you are seeing na, in the particular right hand side. So it is what? It is a combination reactions. Now, here carbon is in a elemental state. So elemental state means what? Elemental state means its oxidation state is 0. Okay, as we have studied in our rules that any element, if it is in elemental state, then its oxidation state or oxidation number will be 0. Similarly, oxygen is in a diatomic state, that is similar atoms combined, that is also generally called as elemental state. So it is also in a oxidation number 0. Similarly, carbon dioxide, अगर आप इसका oxidation number check करते हैं for carbon and oxygen, what will be its oxidation number of both this element? तो पहले आप कार्बन का निकाल के देख सकते हैं. तो अगर मैं कार्बन का निकालता हूँ तो X प्लस ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो वैलेंसी होता है -2. So 2 into -2, no charge at all, equal to 0. That is X equal to what? +4. Here carbon is +4. Okay. Similarly, if you want to find the oxygen, the oxidation number of oxygen, also you can find, that is +4 plus twice X equal to 0. That is twice X equal to -4. That is X equal to -2. X equal to -2. तो दो ऑक्सीजन है मतलब -4. -4 plus 4, that is ultimately it's will be cancelled out. So overall charge will be your 0. That is neutral compound. But if you want to find the oxidation state, oxidation number of each and every element, that is carbon and oxygen we have. So in both the cases we have find out their oxidation number, that is +4 for carbon, and oxygen for only one carbon, only one oxygen, it has -2 oxidation number or oxidation state. 2 oxygen means -2 into 2, that is -4. So -4 plus 4 will be cancelled out, that is equal to 0. So ultimately overall charge will be the neutral, that is 0. Now, so it is a particular element, you can say, particular reactions you can say, that is forming carbon dioxide. So it is a combination reactions. You can explore many examples like this way. Okay, so like you can say, yes, magnesium solid plus nitrogen, obviously it will be gaseous molecule. So what will be the compound formation? Will be the Mg3N2, that is magnesium nitride. Okay, Mg3N2. Here also you can say that two elements combine to form a product. Okay, one product, only one product, that means it is also a combination reactions. Now you can find out the oxidation number of each and every element. Magnesium will be 0, nitrogen will be 0. For magnesium you have to find out 3x, because suppose you are calculating for magnesium, so 3x. Nitrogen will be what? Nitrogen will be what? 3x plus, yes guys, 3x plus what? Any idea? Or if you want to find directly, you can also find out directly, that is magnesium will be what? +2 and nitrogen will be -3. Let's check, because cross valency you can find out the oxidation number of each and every element, that is from all charges. So magnesium 3 and nitrogen N2, cross it, then the charge will be Mg dipositive and tri negative. Now whether it is because when it will be combined and here is no charges, you have find now, we have seen that Mg3N2 is a neutral compound. Now the charges are very different. Yes, charges may be different, but if you want to calculate their overall charges, then you can find out Mg3 और एक मैग्नीशियम का चार्ज कितना है? +2 है, so यहाँ पे +6 हो जाएगा. और नाइट्रोजन कितना है? 2 है, एक नाइट्रोजन का -3 है, तो -3 इंटू 2 कितना होगा? इट इज -6. तो +6 -6 विल बी 0. तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा पूरा मॉलिक्यूल का. सो अल्टीमेटली when two elements combine, it forms only one product, it gives you only one product, and here the oxidation number of each and every element you can find out, and which one is oxidized and reduced you can easily calculate. See, carbon is forming carbon from 0 to +4, so it is what? It is oxidized. Okay,
सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज्ड। जो कार्बन है ये कार्बन +4 बन रहा है इन द प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर आप ऑक्सीजन का चेक करते हैं तो 0 to -2 हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, कम हो रहा है चार्ज। सिमिलरली आप इसका एलिमेंट, इस एलिमेंट का भी, इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज मैग्नीशियम +0 से +2 बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड अनडाउटेडली। और नाइट्रोजन क्या बन रहा है, -0 से, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके भी आप पार्टिकुलर कोई रिएक्शंस आप याद कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, तब आपको देखना है कि यहाँ पे सिंपली एक ही प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है कि नहीं कॉम्बिनेशन होने के बाद। तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, इसमें और कुछ क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो और एक एग्जाम्पल हम लोग साइड करते हैं यहाँ पे। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर। ओके, ठीक है, हो जाएगा, इसमें आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा वो नहीं है, डाउट नहीं है। और एक अभी और एक जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, नेक्स्ट टाइप है आप लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोग ने, मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ आप फिर से पढ़ के आए हो फ्रॉम क्लास 10। ओके, तो ये नया नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर भी हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन? So decomposition reaction means what? It is a reverse of combination reactions. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब एक प्रोडक्ट आपको मिल रहे थे कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद या 2 से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ डिकम्पोजिशंस 2 और मोर रिएक्टेंट्स नहीं, सिर्फ एक रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट मिलेंगे आपको 2 या 3 मिल जाएंगे। मतलब अगर डेफिनेशन हम लोग देखना चाहते हैं तो जनरली क्या बोलेंगे, हम लोग उल्टा बोलेंगे। व्हेन वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट होंगे, it gives you 2 or more products. When one reactant gives 2 or more products upon heating also, upon जनरली अपन हीटिंग होते हैं जनरली, बट जनरली अगर अनस्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी है, तो जनरली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है। एच न्यू, फोटोन्स बोलते हैं हम लोग इसको, एच न्यू। एच मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब आपका फ्रीक्वेंसी। सो जनरली ए विल गिव यू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब एक ही रिएक्टेंट आपको 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट आपको दे सकता है। इस टाइप का रिएक्शंस को हम लोग जनरली बोलते हैं डिकम्पोजिशंस। जस्ट उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। तो लेट्स चेक बाय एन एग्जांपल दैट विल बी मच मोर क्लियर। ओके गाइस, सो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज वाटर का। सो वाटर नॉर्मली हाइड्रोलाइज्ड, या बोल सकते हैं हम लोग वाटर जनरली डिकम्पोज नहीं होते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर हम लोग हीट कर देते हैं वाटर को, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, या अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड बोथ आर गैसियस स्टेट। ठीक है, सो वाटर हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं आप और अगर हीट करते हैं, दैट इट विल गिव यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, एंड बोथ आर इन गैसियस स्टेट। सो जनरली one reactant, that is only one molecule, and it will give you 2 products. That type of reaction is known as decomposition, and you can find out the oxidation number of each and every particular species. Suppose hydrogen, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, ऑक्सीजन का भी 0, बट वाटर का कितना होगा, वाटर का अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, +1, ऑक्सीजन का होता है -2। सो +1 -2 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और 0 0 क्यों होंगे, बिकॉज दे आर इन एलिमेंटल स्टेट। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए आपका जो जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं जनरली इन प्रेजेंस ऑफ हीट होते हैं, मतलब ऑन हीटिंग, प्रोलॉन्ग हीटिंग या स्ट्रांगली हीटिंग अगर आप करते रहते हैं, या अगर आप नॉर्मली अगर सनलाइट गिरा देते हैं, तब भी कोई कंपाउंड हो जाता है डिकम्पोज। ठीक है, सिंपली जैसे हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ठीक है, ऑन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जनरली वहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपली
और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपके लिए फेमिलियर एग्जांपल है, आप लोग ने क्लास 10 को पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग हीटिंग करते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम वन रिएक्टेंट इट विल गिव यू टू प्रोडक्ट्स, दैट इज द केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और सिमिलरली आप हर एक एलिमेंट या हर एक पर्टिकुलर साइट्स में आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दैट मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को देखते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको क्या मिल रहे थे कि जनरली आप लोग देख रहे थे कि आपका कोई रिएक्शंस में क्या होता है कि जनरली कोई एलिमेंटल स्टेट में भी होते हैं। लेट्स क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो बोलेंगे, बट इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शंस। व्हाई इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, लेट्स चेक। सो कैल्शियम कार्बोनेट ना, सो कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सो कैल्शियम कार्बोनेट क्यों एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये हम लोग को देखना है। देखो हर एक प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से देखो, ये सब प्रोडक्ट्स को देखो आप, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो राइट साइड का एलिमेंट, राइट साइड को आप लोग चेक करिए, ये लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब फ्री स्टेट या बोल सकते हो सिंपली ऑक्सीजन या जैसे O2 N2 या कैल्शियम ऐसे करके नहीं है, ये लोग कंबाइंड स्टेट में है। सो ऑब्वियसली दे आर इन एलिमेंट, नॉट इन एलिमेंटल स्टेट दिस प्रोडक्ट्स। सो इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर बीइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस द प्रोडक्ट्स शुड हैव वन, अगर प्रोडक्ट्स में एक नहीं, मतलब ज्यादा नहीं चाहिए, बट एक होने से भी आपको एलिमेंटल स्टेट को देखने को मिलेगा ही, तब वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन मतलब तो ये बोल सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। व्हाई इट इज नॉट, लेट्स चेक। सो कैल्शियम होता है डाई पॉजिटिव, CO3 होता है -2 कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, यहाँ पे +4 यहाँ पे -2। तो लेट्स चेक कैल्शियम कितना हो रहा है, देख सकते हो आप लोग +2 +2 +2। तो कैसे रेडॉक्स बना ये, सपोज कार्बन का निकालना है तो कार्बन का कितना होगा नॉर्मली +4, और ऑक्सीजन कितना होता है जनरली -2। सो ऑक्सीजन -2 से -2, -2 से -2। सिमिलरली कार्बन का +4 +4। तो ये कैसा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, आपको हर साइड में एक ही पार्टिकुलरली क्या मिल रहा है, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है। तो +2 भी मिल रहा है इस साइड में, आपका राइट साइड में प्रोडक्ट जो बन रहा है कैल्शियम का, उसमें भी कैल्शियम +2 ही स्टेट मतलब ले रहा है। तो हाउ इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ इट इज अ रेडॉक्स केमिस्ट्री। रेडॉक्स मीन्स लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई ऑक्सीडाइज्ड होगा, कोई एक रिड्यूस्ड होंगे, बट यहाँ पे नॉर्मली क्या है, दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होता है। बट अगर आप चेक करते हैं वाटर का, मैं वाटर का जो एग्जांपल लिया था उसमें आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको देखने को मिला। यहाँ पे नॉर्मली आप अगर इसका चेक करते हैं तो 0 होता है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा -2, हाइड्रोजन कितना होगा +1। तो देख सकते हैं कि +1 से 0, -2 से 0, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट को देखिए आप, +1 से 0 बन रहा है, मतलब ये एक रिड्यूस स्टेट में जाए, मतलब एक रिड्यूस्ड हुआ है। ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पे। तो जनरली आप देख सकते हैं कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने से आपका पर्टिकुलरली प्रोडक्ट में एक मिनिमम एक एलिमेंटल स्टेट में होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बोल सकते ये एक रेडॉक्स केमिस्ट्री या रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये चीज़ याद रखना, हर एक पर्टिकुलर अगर आपको पूछेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ कि नहीं, उसके लिए आपको जो कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग करते हैं, फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड और पर्टिकुलर स्टेप, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब कमा है या ज़्यादा है या सेम है। अगर सेम है दोनों साइड में, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आप चेक कर लीजिए कैल्शियम का, दोनों साइड में +2 है, तो ये कैसे रेडॉक्स हुआ भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ही नहीं हुआ, ना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये एक रेडॉक्स केमिस्ट्री नहीं है। बट इस क्लास में आओ, यहाँ पे एक रिएक्टेंट से 2 तो प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, बट यहाँ पे भी ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन +1 से 0 बन रहा है, -2 से 0 बन रहा है, मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सो फॉर बीइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, ज़रूर याद रहेगा, आप लोग देखते रहिए वीडियोस।
आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का झमेला खत्म। अभी हम लोग और एक पर्टिकुलर टाइप्स में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। ये भी आप लोग ने पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसके ऊपर बेस करके होता है जनरली? एक दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट या मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। आपको दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। बट आपने सिर्फ क्लास 10 में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हो आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो भी आप लोगों ने पढ़ा था, sorry, on the basis of the reactivity order you have studied. There is only one particular definitions you have studied, and reactions normally you have studied. I think 1 to 2 reactions you have studied. Now, in class 11 you have to study both these cases, that is displacement for metal displacement and the non-metal displacement. So let's start with the metal displacement reactions. And normally displacement reaction based on the what? Reactivity order. Now, how will you remember this reactivity series or order? सो रिएक्टिविटी सीरीज आप इतना सारा रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत सारा एलिमेंट का होता है, ठीक है। मेटल्स का जनरली हाइड्रोजन को जीरो पकड़ते हैं हम लोग। जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, जो नीचे होता है ऊपर एलिमेंट से बहुत क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। सिल्वर अगर देखोगे या गोल्ड देखोगे ये लोग बहुत नीचे रहते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। आयरन, देन कॉपर, देन आपका देख लो कॉपर, आयरन, इसके बाद मैग्नीशियम को देख लो, दे आर वेरी रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन का जो लोअर मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को एक बार देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद तो नहीं रख सकते, बट देख के तुरंत मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है, मतलब, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर करना बहुत ही बड़ा एक चीज़ है, बोल सकते हो, बहुत ही कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। बट कभी कभार क्या हो जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग गड़बड़ कर लेते हैं, तो आप थोरोली इसको देखते रहिए, ठीक है। So metal displacement and the non-metal displacement reactions. So metal displacement में generally जो अगर particularly displacement reactions को देखते हैं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको particularly. Suppose एक element है, suppose X, या metal है suppose, ठीक है। So और कोई भी suppose atom है suppose X, ठीक है। So generally X plus suppose one metal combines with the other element in some compound form. Suppose this y is combined with some other element, suppose copper sulfate or suppose zinc sulfate, like this way. So X plus Yz, here it will form Xz plus Y, suppose, ठीक है। Xz plus Y, here Y is, here the X displaces Y because X is more reactive than Y. Here X is more reactive than what? Y. इसलिए X जेड से एक्स वाई को रिप्लेस कर पाया। तो इस पर्टिकुलरली इस केस को हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो इसको अभी हम लोग थ्रू सम एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। सो मेटल के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है? सो यहाँ पे मेटल के लिए हम लोग, मेटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर कंपाउंड लेते हैं, तो देखिए मेटल कंपाउंड लेते हैं, सपोज मेटल सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है, CuSO4, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन प्लस reacted with the zinc, and zinc is in a elemental state, that is in solid state. So copper sulfate plus zinc, यहाँ पे क्या बनेगा reactions करने से? So you all know zinc is more reactive than copper because zinc copper से थोड़ा ऊपर है, जितना ऊपर होगा उतना reactive ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो compound form होगा zinc sulfate aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। सो इस पर्टिकुलरली इस रिएक्शंस को आप देख के तुरंत समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। दैट मीन्स हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर एंड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट। कॉपर के जगह में जिंक आ गया और कॉपर क्या बना दिया, कॉपर को एक एलिमेंटल स्टेट में ये कन्वर्ट कर दिया। मतलब इट इज इन, कॉपर पहले क्या था +2, ये बन गया अभी 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। और SO4
सॉरी जिंक पहले 0 था, अभी जिंक बन गया +2, दैट मीन्स जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कॉपर यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलरली इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग जनरली बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल को डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने इस पर्टिकुलरली केस को लिया है यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैं अभी और एक कंपाउंड ले सकता हूँ और एक एग्जांपल लेने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों के लिए, इसको अभी रफ कर देता हूँ। और यहाँ पे ये रेडॉक्स है कि नहीं आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने लिख ही दिया। सो कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शंस भी है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेट्स एक्सप्लोर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग टाइटेनियम का। सो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज इन लिक्विड फॉर्म प्लस रिएक्शंस विद द मैग्नीशियम सॉलिड। अच्छा ठीक है, और एक बात बोलना है कि ये जो बैलेंसिंग है ना, ये बैलेंसिंग आप लोग कर लेना, ठीक है। बैलेंसिंग मतलब एग्जाम पे अगर आप लोग लिख रहे हैं कोई एग्जाम्पल्स, तो ये तुरंत ये भी ध्यान रखना कि बैलेंस किया जाए। अगर ज़रूरत नहीं तो छोड़ दो, अगर आपको कन्फ्यूजन है तब भी आप लोग छोड़ दो, बट आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड ये पर्टिकुलरली ये दो चीज़ दिखाना है, ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स डिडक्शंस हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लिक्विड प्लस मैग्नीशियम सॉलिड, यहाँ पे क्या बनेगा, एंड वी ऑल नो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन टाइटेनियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्या बनेगा, सो इन दिस केस इट विल फॉर्म मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस क्या बनेगा, टाइटेनियम सॉलिड, ठीक है। और जो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनेगा दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, ओके। आपको ये सब फेज अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक देता है एग्जाम पे तो आप छोड़ दीजिए, सिंपली आप ये रिएक्शंस लिख के आ जाइए, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। सो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लिक्विड प्लस मैग्नीशियम सॉलिड, इट गिव्स यू मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस टाइटेनियम सॉलिड। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज़, यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा शायद, क्योंकि Cl2 है तो यहाँ पे आपको 2 देना होगा, अगर आपने यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अभी देखो ये बैलेंस्ड हुआ कि नहीं, टाइटेनियम 4 क्लोरीन, हाँ 2 मैग्नीशियम, हाँ ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ छोड़ दीजिए, आप तुरंत इसमें सिर्फ आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आइए। मतलब टाइटेनियम यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है टाइटेनियम का, +4, सॉरी मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को अच्छे से मिले। सो टाइटेनियम यहाँ पे +4 है। इसके बाद अगर आप मैग्नीशियम का देखते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पे 0, यहाँ पे मैग्नीशियम का हो गया +2, टाइटेनियम का हो गया 0। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि +4 से 0 बन रहा है, इट इज रिड्यूस्ड, 0 से +2 बन रहा है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है साथ ही साथ। सो यहाँ पे मैग्नीशियम टाइटेनियम को रिप्लेस किया या डिस्प्लेस किया, एंड टाइटेनियम की जगह में मैग्नीशियम आया और टाइटेनियम को एलिमेंटल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट अबाउट द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट? सो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में आप नॉन मेटल्स को ही आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो मेटल डिस्प्लेसमेंट इज राइट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। सो रिएक्टिविटी सीरीज में तुम लोगों को दे दूंगा एक पर्टिकुलर, इसके साथ मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, टेंशन मत करो। मैं नॉन मेटल मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज है मैं इसके साथ आप लोग नीचे में थोड़ा देख लेना, मैं वहाँ पे एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। तुरंत इस वीडियो के तुरंत ही नीचे मैं रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे हम लोग नॉन मेटल्स पर्टिकुलरली देखने वाले हैं। और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग ने देखा कि मेटल डिस्प्लेसमेंट में जनरली मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, एक मेटल मतलब एक नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों कंडीशन ही अराइज होंगे। जैसे मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली 3 केस लूंगा यहाँ पे, तो 3 केस में मैं आज देखने वाला हूँ विथ एल्काली मेटल्स, जो बहुत ही रिएक्टिविटी होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी है। एल्काली मेटल्स का हम लोग देखेंगे, एंड सम एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, सम पर्टिकुलर कंडीशंस यू विल चेक, सम एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, हर एक एल्कालाइन अर्थ मेटल्स नहीं है। एल्काली मेटल फ्रॉम द ग्रुप 1 दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 2 दैट इज योर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ओके। सो सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स विल सी। सो पहले कंडीशंस हम लोग को देखना है, एल्काली मेटल्स और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स को हम लोग कैसे डिस्प्लेस करता है,
या कैसे इसको डिस्प्लेस करता है बाय द नॉन मेटल, ठीक है। तो लेट्स चेक, सपोज सोडियम, यू ऑल नो sodium is a group 1 element, it reacts with the water, okay, and this water in a liquid state, suppose. So sodium plus water, generally it forms what? It forms sodium hydroxide plus hydrogen gas. It होता है reactions. So sodium, when it combines with the water, it forms sodium hydroxide and hydrogen. Now you have to check. Now in this particular reactions you have to check that whether, because we all know this hydrogen and we have oxygen, both are known metals. So यहाँ पे किसने डिस्प्लेस किया इस हाइड्रोजन को? This metal. So metal displaces this hydrogen and it forms sodium hydroxide and displaces this H2. Clear? So here you can see that all alkaline metals or some alkaline metals, अगर हम लोग definition देखते हैं, it's a very good reducing agent and it can displace water and displace hydrogen from the cold water. So यहाँ पे जो सोडियम है ये बहुत ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर होने के कारण ये लोग क्या कर सकता है कि इस वाटर से इस हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो हर समय मेटल ही करेगा या नॉन मेटल ही करेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों कंडीशन से अराइज होंगे। यहाँ पे मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं कि एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे मैंने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया बाय गुड रिएक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट कैल्शियम को देख लीजिए आप, कैल्शियम सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। सो कैल्शियम ये भी एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैल्शियम क्या बना सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब it can displace this hydrogen from the cold water. So generally it is also one type of non-metal displacement by alkaline metals or alkali metals. In the first case we are dealing with the alkaline metals and in the second case we are dealing with alkaline earth metals. So that is some conditions. Okay guys,